Hi, in today's episode, we have Suzonn. Suzonn is an independent singer, songwriter, and composer living in the northeastern region of India, one of my favorite parts of India. But for Suzonn, growing up in a financially challenged family with no musical background, he had to face a lot of resistance during the early phase of his journey. On this episode today, Suzonn will talk about his dark phase, his undying faith in his art, and what it takes to be him, the singer, the dreamer, the composer, and the songwriter. Welcome, Suzonn, in today's episode. Hey, Mohua, thank you so much for inviting me on your show. And yeah, I'm really excited, actually. Me too. I'm extremely excited. So to begin with, it is so cute to listen to your Northeastern accent because that's something I'm so used to. And it's so wonderful. But when we listen to your Hindi songs, it's so chaste and so clear. So did you go through the whole process of learning each of the words, or it just comes naturally to you? Initially, it comes naturally just because my father is in army. Okay. So ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा मुझे हिंदी आ गया. Okay. And then थोड़ा I had to work on learning Urdu words actually. तब थोड़ा मुझे Urdu words उर्दू जो शायरी है या फिर जो गाने पाकिस्तानी सॉन्ग्स में ज्यादा सुनता था एक्चुअली तो थोड़ा सीखने के लिए. उर्दू के जो लफ्ज है ना, लफ्ज है या तो और हिंदी सॉन्ग्स में भी है, बहुत यूज होता है जी. तो और वैसे ही मैं आगे सीखते सीखते चला गया, मतलब इतने साल वो ही सीख रहा था. So just tell me a little bit about how was it that you've done engineering? You're an engineer by profession. And so how did this whole, the bug of singing, songwriting, when did you realize that, that this was so inside your system? So पहले इतना मुझे, जब पहले तो मैं गिटार सीख रहा था कि मुझे गिटार में इंटरेस्ट था, तो गिटारिस्ट बनना था. पता नहीं क्या बनना था मुझे उस टाइम में, मैं क्लियर नहीं था. बट या गिटार से मैं थोड़ा वो हुआ, स्टार्ट किया मैंने. देन धीरे धीरे फिर मैंने गाना कंपोज, मतलब इनिशियली जब मैं गिटार सीख रहा था उसी वक्त से मैं गाना लिखने लग गया और कंपोज करने लग गया. तो पहले से स्टार्ट हुआ, बट उस टाइम पे जो लिखता था या फिर वो तो ऑब्वियसली पहले स्टार्टिंग में जब हम लोग करते हैं तो इतना अच्छा नहीं होता है. देन वहां से स्टार्ट, पहले 2010 से शायद से स्टार्ट हुआ था. 2008 से मैं गिटार सीखा, 10 से मैंने लिखना शुरू किया. वहां से पूरा शुरू हो गया एक्चुअली, पहले से ही मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, songwriting and composing. You're based right now out of Guwahati, am I right? Yes. Yeah. So how does it, how easy or difficult it is for you to, do this whole thing? Because at the end of the day, the music industry, where most musicians really want to go back into playback singing, right, for films, and that's where the real recognition for across India happens. So do you see yourself shifting out of Guwahati, or, with the pandemic now, it's easier to do things from whichever part of India you're from? I don't think. Actually, I'm really comfortable, in working here, actually. Okay. पहले तो मैं सोचता था कि हाँ मुंबई जाऊंगा और बॉलीवुड में कुछ, बट मुझे सिंगर बनने का मुझे इतना शौक नहीं था. मैं कंपोजर या फिर राइटर बनना चाहता था, मतलब सॉन्ग राइटर बनना चाहता था. तो मैं वही सोच रहा था कि मैं शायद बॉलीवुड में जाऊं और मैं एज अ कंपोजर जाऊं. तो वैसा मेरा प्लानिंग था. बट देन जब ये स्टार्ट हुआ आपका इंडिपेंडेंट म्यूजिक, जब ग्रो करना स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं गाना पहले से भी गाता था, तो मुझे लगा कि अभी मुझे ट्राई करना चाहिए कुछ, मतलब क्योंकि अभी बहुत इजी हो गया. उस वक्त जब मुझे पता चला कि बहुत इजी हो गया अभी टू थ्रो माई म्यूजिक टू डायरेक्टली टू द ऑडियंस एक्चुअली. सो मेरे लिए इजी हो गया था. तो मैंने फिर वहां से अपना गाने रिलीज करना ही स्टार्ट कर दिया. तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया. यहाँ से मैं, क्योंकि गुवाहाटी से मैं सब कुछ कर सकता था, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया मैंने मुंबई जाने का. When we talk about the growth of independent musicians, so there is a lot of independent filmmakers today, independent music, and they do amazing work, but there's always a struggle for,
for the funds and for the money that most artists actually in India always face. So do you feel that there's a lot of truth in that? And if you're an independent musician or an independent filmmaker, an independent artist, basically, the journey is more tougher than what it is to be, part of a mainstream system. Yeah, it is absolutely true. Just because जब हम कुछ अभी मेरा मैं अपनी तरफ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो जब मैं कुछ ट्राई करता हूँ, एक गाना बनता है तो हम लोग उस तरह का स्टूडियो क्वालिटी एक म्यूजिक हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो हम लोग रहते हैं कि हम लोग घर पे जितने, क्योंकि होम स्टूडियो ज्यादातर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का होम स्टूडियो होता है, राइट। तो वो क्वालिटी ऑब्वियसली हम लोग मैच नहीं कर पाते, जो स्टूडियो क्वालिटी, जो प्रोफेशनल क्वालिटी होता है। बट थैंक्स टू द ऑडियंस एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट बिकॉज उन ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता। ये है ब्यूटी इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, कि ऑडियंस को वो रॉनेस ही पसंद है। तो फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। या ऑडियंस अगर एक्सेप्ट कर रही है, उन लोग उनको फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली कि क्या क्वालिटी आ रहा है। गाना हम लोग सुनते हैं, हम लोग फील करते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक अच्छा मतलब चीज हुआ हमारे लिए। So then that really helps a lot of artists to come in, and do their own thing out of the studio. But one has to admit that when you do it out of a studio, definitely the voice pitch, the quality, all of that is far more of superior quality than what you would do, out of a place. Because I also record, from my own home. So I know exactly what you're saying. Yeah. So just coming back to talking as an artist, I mean, it's so difficult when you have this whole creative urge and that creative personality inside you, and you are, and as I read about you, that you were working in an oil rig space, right? And you mentioned that was your darkest phase. So when you say that it was your darkest phase, you mean from the expectations of quitting your job as an engineer and getting back into something that remains so shrouded in non-payment, in not knowing what the future is ahead, because it's so competitive to be a musician or an actor, and or basically in the world of arts, there's so many out there. So when you talk about this dark phase, just probably just share with our listeners, Suzonn, वो dark phase का मतलब क्या है हमारे सुनने वालों के लिए? So डार्क फेज का मतलब यही है कि जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली गाने, जब मैंने इनिशियली स्टार्टिंग 2011-12 में मैंने पहला गाना, क्योंकि मैं 2010 से लिख रहा था, तो मुझे कुछ करना था। तो उस वक्त मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने वो भी सीख रहा था प्रोडक्शन एंड ऑल, तो मैंने उसको मेरा एक 2-3 गाने मैंने उसके साथ किए मैंने, और वो गाने हिट हो गए ब्लूटूथ के थ्रू। एक्चुअली उस वक्त मुझे इंटरनेट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ वहाँ दोस्तों को देख के हम लोगों ने वो किया, मतलब स्प्रेड कराया एक्चुअली। देन क्या हुआ कि थोड़े गाने वहाँ यहाँ चलने लग गए, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे कुछ फैंस बन रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली मैं म्यूजिक में उस वक्त ज्यादा सीरियस नहीं था, बट मुझे बहुत पसंद था म्यूजिक, और मुझे म्यूजिक करना था, बट म्यूजिक ही करना था ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग जब खत्म हुआ, मुझे एक सीधा रास्ता यही दिखा कि जॉब करना है, तो मैं चला गया जॉब करने। बट उधर क्या हुआ कि एक तो ऑयल रिग में बहुत ज्यादा मेहनत होता है, उसका भी एक इफेक्ट था कि मुझे वो काम अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा था कि मेरा म्यूजिक बिल्कुल छूट गया था। तो छूटने के बाद तो ऑब्वियसली मैं मिस कर रहा था म्यूजिक को। तो फिर बाद में जब मैं घर आता था कभी कभी छुट्टी में, तो उस वक्त मतलब वो पहले वाला जो फ्लो था मेरा वो रहा नहीं। घर वालों ने क्या कहा तुम्हें, सुजॉन? जब तुमने कहा कि तुम इंजीनियरिंग छोड़ के गाना गाओगे, गायक बनोगे, that must have been the toughest, right? To tell your parents after engineering, because there was investment for your engineering, and for parents who struggle. So yes, that can be such a letdown. वही एक डार्क फेज था, सब मिला के एक्चुअली मेरा वही डार्क फेज था कि मुझे जॉब छोड़ने का मैंने डिसीजन लिया। उसके बाद मैं घर आके मुझे फेस करना था, क्योंकि उसके बाद पेरेंट्स को मैं क्या ही बताता, है ना। और क्योंकि हमारे फाइनेंशियली चैलेंज थे, हमारा जो था फैमिली था। तो उसके बाद
हम लोगों ने मतलब प्रॉब्लम तो था, तो फिर पहले तो खुश हुए थे कि यार जॉब कर रहा है तो कुछ पैसे आएंगे घर पे, बट देन मैं तो घर पे बैठ गया तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर मैं ज़्यादा सुना, मुझे थोड़ा जिद था मेरे अंदर एक्चुअली, और इतना सपोर्ट तो मिला नहीं घर से, बट वो सपोर्ट जो मतलब मैं पेरेंट्स का बात भी समझता हूँ, उनका जो कंसर्न है वो भी बहुत समझता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब फाइनेंशियली आप वीक रहोगे तो आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखता नहीं है, बट मैं बहुत थोड़ा जिद्दी था मैं एक्चुअली, मुझे करना था, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना था, तो Who was more angry between your parents, your father or your mother? फादर ऑब्वियसली। Okay. So tell me, where did this whole musical interest start with? Was it your grandmother, your mother, your grandfather? Because I think, for a lot of people across India, they don't know how culturally rich Manipur is. I mean, I've seen the dancers and I've seen a couple artists in Delhi in Triveni Kala Sangam. They were constantly practicing the dance. And so people don't know too much all over. Yes, there are people who know now about the Northeast, but deep down, the beauty of that culture is not known. So, where did you derive this whole interest towards song and writing? I think our community is, very rich in culture. Tell us a little bit about the community. So, my community is Vishnupriya Manipuri, जो कि एक Okay. small community है, जो पहले मणिपुर से बिलोंग करते थे पहले हम लोग, बट देन उधर थोड़ा सा कुछ कंफ्लिक्ट आया हम लोगों के बीच, मेते मणिपुरीज और विष्णुप्रिया मणिपुरीज के बीच में, देन हम लोगों को मणिपुर छोड़ना पड़ा, छोड़ के फिर हम लोग स्प्रेड हो गए त्रिपुरा, असम और इवन बांग्लादेश तक। तो देन तो क्या हुआ कि स्मॉल कम्युनिटी है, बट जो कल्चर है वो सिमिलर है विद द मेते मणिपुरीज। सो या तो ऑब्वियसली जब सिमिलर कल्चर, तो ये आर्ट का जो वो है वो रहता ही है ना, सबके अंदर खून में है वो। Right. तो वहां से शायद से क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरे घर पे कोई म्यूजिशियन नहीं है, तो मुझे पता नहीं था ये कहाँ से आया। मुझे लगता है कि ये शायद मेरे कम्युनिटी उसमें ही मेरे खून में है एक्चुअली शायद। Yes. Yeah, I guess मैं तो यही सोचता हूँ। Okay. So basically, you think that this is very much a part and parcel of your culture, and I kind of understand that, because being a Bengali also, when I were to think as to what is it that makes me love the arts, I don't know who to give credit to. Yes, both my parents are artistically inclined and they're creative people, but they're not people who have pursued that as a career. And yes, it does come to you naturally, because you do see the weaving around you, and that's art. You do see, the kirtan around you, and that's art, right? And you do see the way the instruments are made, and that's art. You do see the way they worship, especially the Vishnupuri Manipuris, they worship Krishna. Am I right? Yes, yes. And Krishna is about songs, and is about dance, and it is so. It is so amazing to talk to you, Suzonn, because you take me back into a place that I so wish to go back to. And yeah, because there's so much of art and culture that's not really known, really, really well. And there are a lot of, actually, there is an independent filmmaker who's coming out from Manipur, and he's been doing some amazing work. And of course, you have the designer Robert Naurem also, who does these amazing Fenak, right? So yes, I mean, I'm extremely fascinated with this. So Suzonn, just tell me, when do you plan to go and get into filmmaking music? I mean, do you think you need a godfather there to make an entry? Or as an independent artist, things are changing today in a way that it'll be easy for you to start, making your footsteps towards, doing film music? क्या तो अभी मेरे लिए ये थोड़ा इजी हो चुका है फिलहाल, क्योंकि जब 2020 में जब मेरा गाना सुन लो ना, जब लोगों को पसंद आया, और उस वक्त तो मैंने एक एनिमेशन में ही मैंने गाना, एक लूप एनिमेशन में ही मैंने गाना को वो किया था, प्रेजेंट किया था। बट उसके बाद थोड़ा हल्का सा फाइनेंशियली में थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ धीरे धीरे, यूट्यूब से या फिर थोड़ा यहाँ वहाँ से, तो देन वहां से मेरा मैंने फिर सोचा कि यहाँ से मुझे अभी थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे मैं ऐसे ही नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में भी, और मैं ट्राई करता हूँ अभी, और भी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है मैं
मेरे बहुत सारे प्लानिंग्स है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एनी हाउ जुगाड़ करके, है ना, कैसे भी करके जुगाड़ करके एटलीस्ट मैं अच्छा एक विजुअल्स भी दे पाऊँ विथ माय म्यूजिक, जो मैच Okay. कर सके और जो मेरा थॉट को मैच कर सके। क्योंकि मैं सिर्फ गाने मेरे ऐसे में जब लिखता हूँ तो मैं मेरे पर्सनली मेरा वो रिलेटिव बहुत कम होता है, मैं रिलेट करके लिखता हूँ, होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं होते। मैं ज्यादातर मैं लिखता हूँ तो मैं दूसरों से इंस्पायर होता हूँ, दूसरों के लाइफ से इंस्पायर होता हूँ। सब आर्टिस्ट लोगों के लिए वो इट होल्ड्स ट्रू कि हम जितने लोगों से बात करते हैं उतना ज़्यादा उन सबसे इंस्पिरेशन मिलती है। तो जब मुझे लोग पूछते हैं या मुझे जब लोग पूछते हैं कि आपका म्यूज़ कौन है, मैं कैसे बताऊं कि कौन म्यूज़ है? मेरे तो इतने सारे लोग हैं जो म्यूज़ है। किसी से बात किया और कोई एक अपनी खुद की मेमोरी पे आप टैप कर गए जिसके साथ कुछ कोरिलेशन रहा और उसके बाद आगे यू यूज़ योर क्रिएटिव लाइसेंस टू टेक इट फॉरवर्ड इन राइटिंग। So I kind of completely relate to that, Suzonn. Yes, but it's amazing to know that you're planning to also do your own, music videos, which will be fantastic. And yes, which is amazing. And Suzonn. So for a lot of my listeners who are based not just out of India, we have a lot of listeners who are also internationally. I will repeat the things that you have said. Just for our listeners, that in 2010, during the initial days of Suzonn's engineering, concurrently, he started his musical journey by dipping toes into alternative rock. So, after completing his education, Suzonn went on to work in an oil rig, which brought his musical journey to a complete halt, and that he claims was his darkest phase in his life. So, soon he quit his job, to the utter horror of his parents, and went back home, decided to pursue music as his career, and he started exploring and experimenting with different styles and genres. Simultaneously, he started writing, composing, producing music for his tracks. In 2016, his music career hit rock bottom. After that, he was diagnosed with chronic laryngitis. So, Suzonn, tell me a little bit more about chronic laryngitis for a singer means the death of your identity. How did you cope with that? Oh my God, I think that is the darkest, zone for me actually. Just because उस वक्त तो मैंने completely होप छोड़ दिया था। एक तो घर पे प्रेशर था कि मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। देन मुझे पता चला कि मुझे क्रॉनिक लारिंजाइटिस है। मैं बात भी नहीं कर पाता था। शायद आज ये इंटरव्यू ही नहीं होता अगर मैं ठीक नहीं होता तो। ऐसा था कि मुझे बात करने में बहुत तकलीफ होता था। मैं गाना तो मैंने भी छोड़ ही दिया था। जैसे आप ये बात कह रहे हो ना, तो मुझे भी I look back into my life and I was bedridden and I was also diagnosed with an autoimmune disorder. और मैं चल नहीं सकती थी और एक हाथ मेरे एल्बो से ऊपर नहीं उठता था, एक आंख मेरी ऑलमोस्ट जा रही थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसी हाथ से इट वाज माय राइट हैंड जो एल्बो से ऊपर नहीं जा रही थी, उसी हाथ से मैं ये फुल फेज में इतने ऑलमोस्ट 30 या 40,000 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। और और कभी व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि वो एक फेज था ह्यूमिलिटी सिखाने के लिए मुझे। वो एक फेज था जहाँ पे यू डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और वो एक फेज था जब आप उसमें से जब निकल के आते हो क्राइसिस में से, आप एक नए इंसान बन के आते हो। एम आई राइट? यस, एग्जैक्टली। वही शायद से मेरा टर्निंग पॉइंट था। शायद से मैं मेंटली प्रिपरेशन भी ले रहा था। मैं सेकंड वे देख रहा था कि मुझे अभी करना क्या चाहिए, या जॉब करना, फिर से जॉब जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त इंसान रास्ते ढूंढता है कि अभी करना क्या है मुझे। Exactly. तो मैंने फिर सोचा कि क्योंकि मैं कंपोज ही कैसे कर पाऊंगा जब मैं गा ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा सिचुएशन में मैं था, तो मैंने बिल्कुल होप छोड़ दिया था उस वक्त कि मुझे म्यूजिक में कर पाऊंगा कभी। बट देन जब मैंने इलाज करवाया, थेरेपीज लिया, वोकल थेरेपीज है, जब थोड़ा मैं कम बैक किया मैंने अपना और वोकल्स थोड़ा ठीक होने लगा, तो फिर पर मैंने सिंगिंग स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया था। पहले थोड़ा अलग गाता था, फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सटल वे में मैं गाने लग गया उसके बाद, और स्टाइल चेंज करके फिर कंप्लीटली नया चीज। और उस वक्त ये अच्छा हुआ कि तब इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत स्टार्टिंग ग्रो कर रहा था। या इट वाज लाइक बूमिंग। सो मेरे लिए बहुत इजी हो गया और ऊपर से ये है कि जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक के जो लिसनर्स है, जो ऑडियंस है, वो बिल्कुल ही कंप्लीट जो मेन स्ट्रीम म्यूजिक है उससे कंप्लीटली डिफरेंट चाहते हैं सुनना। और मेरे लिए वही एक क्या बोलते हैं रास्ता बना एक्चुअली, जो मैं रास्ता ढूंढ रहा था
कि मुझे करना क्या है। तो ज्यादातर हार्डशिप से ही रास्ता निकल के आता है जिंदगी का, वहीं से मकसद निकल आता है एक्चुअली, और हमें जिस वक्त आप व्हेन यू गोइंग थ्रू द डार्क फेज, यू फील दैट द होल वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड एंड द वॉल्स आर क्लोजिंग ऑन यू, बट एक्चुअली यू आर कमिंग आउट ऑफ अ डार्क टनल इनटू अ ब्राइटर लाइट अहेड. And I say this to myself and I'm saying this to you, because I've been through, for me, my father like invested all his money for me to study and I gave it all up and I was inflicted with this whole disease. And now that I'm coming back with work, it just feels that, yes, it's still very dark. There are moments when I just feel that, why am I doing this? What is the reason? Why can't I be, easier with myself? But I don't know how to be easier with myself. So Suzonn, I completely relate to it. But let's just talk about some of the songs that you started doing after the chronic laryngitis. You took to indie folk and came up with your first song, Tu Jo Paas. And it received a very good response. How was the feeling? सो या इनिशियली तो मुझे रेस्पॉन्स ज़्यादा मिला नहीं था. जब मैंने रिलीज किया 2018 में, तो उस वक्त मेरा जो चैनल था यूट्यूब में वो उतर ही दिया था. मैंने स्ट्रीमिंग साइट्स पे, मैंने प्लेटफॉर्म्स पे मैंने दिया नहीं था. मैंने सिर्फ यूट्यूब पे दिया था. और यूट्यूब में मेरा जो पहले का जो जॉनरा था या फिर पहले जो मैं गाने गाता था उसके कुछ ऑडियंस थे वहाँ पे. तो जब तुझो पास मैंने ये कम्प्लीटली नया सॉन्ग था, न्यू सुजॉन कह सकते हो. तो उस वक्त क्योंकि मैं अपना वॉइस को भी डेवलप कर रहा था, तो उस वक्त जब मैंने गाना थ्रो किया तो ज्यादा रेस्पॉन्स मुझे मिला नहीं एक्चुअली. बट जब मैंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स 2019 में मैंने एंड पे 2019 के एंड पे, आई गेस सितंबर या अक्टूबर में, भूल गया एग्जैक्टली, उस वक्त जब मैंने गाना जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स, तब मुझे वो रेस्पॉन्स मिलने लगा उस गाने का. क्योंकि मैं सोचा था कि गाना शायद खराब बना है, मुझे पता नहीं लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. और जस्ट यूट्यूब से आप नहीं बोल सकते कि गाना खराब है, क्योंकि बाकी जब दिया तब, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो म्यूजिक के जो लिसनर्स है वो ज्यादातर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे ही घूमते रहते हैं. ज्यादातर यूट्यूब में भी है, बट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में स्पॉटिफाई एंड ऑल, एप्पल म्यूजिक, यहाँ पे ज्यादातर उन लोग गाना सुनते हैं. तो उस गाने का मुझे जब मैंने दिया तब मुझे पता चला कि गाना, मुझे भरोसा हुआ कि गाना अच्छा है, एक्चुअली इतना बुरा गाना नहीं है. तो या वहां से स्टार्ट हुआ वो गाना, मुझे रेस्पॉन्स मिलना एक्चुअली. फैंटास्टिक, सो अमेजिंग टू हियर दिस. और मैं तो बिल्कुल ही फिदा हूँ फॉर योर सॉन्ग हमसे खफा. I think it's one of the, it just really, really touched my heart. And it's a debut collaboration with a record label. It's called Select by Coinage Records. And it's a rather unconventional track compared to your previous releases. And it's being adored by the mass audience, your interviewer being one of them. And next year, you are planning to release your debut album along with a few singles. Am I right? Yeah, so I'm not sure album hoga, nahi hoga, but yeah, we are planning. कि अगर होता है तो अच्छा है, बट हाँ, मतलब यस, प्लान तो है. So thank you so much, Suzonn. But before we end, I have to say a quote by Elizabeth Kubler-Ross, that the most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep, loving concern for people around them. Beautiful people do not just happen. So thank you so much, Suzonn, for being on today's episode. And we wish you all the best in your musical career. और हमसे खफा तो दिल में बस गया. Shukriya. Lots and lots of love. Thank you so much for inviting. Thank you. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services. Find us on Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course, all other major streaming services. With loads of love, we are Moody Mohawaz Podcast, where Hatke is hot.